Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the ineligibility of tax auditor as per Income Tax Act. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. And also please like the video and share with the maximum number of members so that they can also take the benefit of this video. So regarding the ineligibility of tax auditor as per Income Tax Act, we already aware about the ineligibility as per the Companies Act for the statutory auditor. Now today we will check about as per the Income Tax Act, like eligibility criteria. It's mentioned in section 288 or 44 AB may be mentioned, means you have to go for the tax audit from an accountant. So what's the ineligibility criteria? So my request to all of you, please, before accepting or before doing any tax audit, please watch this video or please check this section carefully. And before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be constitute the views of the ICI, CSNSR, or any other person or any other authority. And don't take it any legal opinion, legal advice, professional advice. And the purpose of this video is to spread knowledge, information, and awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also go through the ICI guidance note on tax audit, relevant income tax section, and then relevant notification, income tax circular. So thank you. And regarding section 44AB, सेक्शन 44 AB के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो यू कैन चेक फ्रॉम द सी एस संसार यूट्यूब चैनल, जिसमें हमने क्लोज बाय क्लोज, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, डी, ई, इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस किया था. देन वी हैड डिस्कस ऑन सेक्शन 44 AD, उसके ऊपर भी पूरा कंप्लीट वीडियो है. देन सेक्शन 44 ADA, देन सेक्शन 44 AE, देन टैक्स ऑडिट applicability in case of future and option share trading. So in case you missed that video, you can check from the CSNR YouTube channel. Otherwise, we will also give you the link from in the I button. आप वहां से check कर सकते हो. So regarding today, regarding the ineligibility of tax audit. So eligibility क्या है? Section 44 AB में what it says, every person covers under section 44 AB, clause A, B, C, D, E shall get his accounts of such previous year audited by an accountant. तो अकाउंटेंट उन्होंने मेंशन किया है कि आपको अकाउंट्स ऑडिट करने अकाउंटेंट से. देन इन द एक्सप्लेनेशन दे सेड अकाउंटेंट शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन द एक्सप्लेनेशन बिलो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 288. तो अकाउंटेंट कहाँ डिफाइंड है? जो एलिजिबिलिटी 44 AB सेज कि आपको अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवाना है, एंड अकाउंटेंट डिफाइंड है इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 288. So subsection 2, section 288 explanation, it says accountant means a chartered accountant as defined in clause B of subsection 1 of section 2 of the Chartered Accountant Act 1949, who holds a valid certificate of practice under subsection 1 of section 6 of the act, but does not include. That's very, very important. So here they have defined the ineligibility. ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी टैक्स ऑडिट कर सकते हो. No, they have mentioned here, they have mentioned in the explanation of section 288 subsection 2, they have defined does not includes in case of companies. In case of company, if the assessee being a company, or in other case means assessee being not a company. So we'll discuss कि किस किस कंपनी का आप टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते या किस किस असेसी का आप टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते. हियर द वर्ड इज डज नॉट इंक्लूड. सो इन केस ऑफ कंपनीज, अगर इफ द असेसी इज ए कंपनी, तो टैक्स ऑडिट जो इनएलिजिबिलिटी है इन केस ऑफ ए कंपनीज. सो हियर द सेम थिंग विच आर डिफाइंड इन सेक्शन 141 में जो इनएलिजिबिलिटी है. तो दे सेड इन केस ऑफ एन असेसी
being a company, the person who is not eligible for appointment as an auditor of the said company in accordance with the provision of subsection 3 of section 141 of the Companies Act 2013. तो जो 141 में जो आपकी इनएलिजिबिलिटी है कि अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं फॉर्म हो सकते तो आप उसके टैक्स ऑडिटर भी नहीं बन सकते। सेम डिस्क्वालिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट सेड कि जो डिस्क्वालिफिकेशन आपके सेक्शन 141 में है सेम इज हियर। तो ये ऑलरेडी वी हैड डिस्कस, ये हमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते, लाइक बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर और एम्प्लॉय, ए पर्सन हु इज द पार्टनर हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ए पर्सन हु इज रिलेटिव और पार्टनर। तो ये सारा आपको सेक्शन सबसेक्शन 3 और सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये वहां पे पूरा डिफाइंड है, क्लोज ई एफ जी एंड देन एच आई। तो ये सारा सारा वहां पे डिफाइंड है। मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप कब अपॉइंट नहीं हो सकते। इसको आप अदरवाइज आप एक बार उसको चेक कर लेना कि अगर किसी कंपनी के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते तो आप उसके टैक्स ऑडिटर भी नहीं अपॉइंट हो सकते। तो in income tax act in section 288 they have also defined in case of a company कि अगर कोई कंपनी है, in case assessee being a company, a person who is not eligible for appointment as auditor of said company in accordance with the provision of subsection 3 of section 141 of the Companies Act। तो क्लियर कि अगर कुछ आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट नहीं है सेक्शन 141 में एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो आप एज ए टैक्स ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं हो सकते इन केस ऑफ कंपनी। And remember one more thing, that's very very important. A person who directly or indirectly render any services referred to in section 144 to the company or its holding company or its subsidiary company, तो वहां पे भी आप एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज एन टैक्स ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो 144 में कुछ सर्विसेज दे हैव डिफाइंड आपने कि आप इंटरनल ऑडिटर हैं या फिर आप अकाउंटिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, कुछ पूरी सर्विसेज दे हैव डिफाइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू रिलेटिव भी है उसके अंदर। तो उस केस में भी आप टैक्स ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो इसको भी आप अच्छे से चेक कर लेना बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अदर देन कंपनीज and then in any other case other than companies। तो before that let's discuss the definition of relative, क्योंकि relative की definition हमारे बहुत काम आने वाली है in this section 282 288 subsection 2 में। तो relative in relation to an individual means spouse of the individual, means अगर individual है उनके husband या wife जो भी है spouse of the individual, brother or sister of the individual, then brother or sister of the spouse of the individual, कि जो spouse है उसकी spouse either it can be husband or wife, जो उनकी spouse की brother या sister वो भी include होंगे। then any lineal ascendant or descendant of that individual, then any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual, then spouse of the person referred in clause B, C, D or E, इनकी भी spouse है। then any lineal descendant, यहाँ पे ascendant नहीं है, of a brother or sister of either the individual or spouse of that individual। this is very very important definition। इसके ऊपर अगर आप चेक करोगे तो अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो इनमें से तो यू आर नॉट अलाउड टू डू द टैक्स ऑडिट, यू आर इनएलिजिबल। इसको मैंने एक समराइज वे में करा हुआ है कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ रिलेटिव, जो रिलेटिव लाइक इंडिविजुअल हियर हस्बैंड और वाइफ, वाइफ या हस्बैंड, इंडिविजुअल या स्पाउस। तो इस केस में कौन कौन होगा आपका, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है, उनके लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट मींस आपके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर आपका सन, और उसके बाद आपके जो नीचे जो लीनियर डिसेंडेंट है वो सारे सारे आपके इंक्लूड हो जाएंगे, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन जो भी है सारे। देन ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, कि जो आपके इंडिविजुअल है ब्रदर या सिस्टर। फिर उस केस में जो आपके लीनियर असेंडेंट हैं, जो आपके डिसेंडेंट है, उनकी स्पाउस भी इंक्लूड है। मींस अगर मेरे दादाजी हैं और उनकी वाइफ दादी, तो उनका भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। या फिर आपके कोई सन है, आपकी सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ है, उनका भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। लाइक ब्रदर सिस्टर, उनका कोई स्पाउस है, ब्रदर सिस्टर का कोई स्पाउस है, लाइक मेरे सन इन लॉ है,
उन ब्रदर सिस्टर को, उसका भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। देन आल्सो इंक्लूड लीनियल डिसेंडेंट, कि आप अपने ब्रदर, उनके जो बेटे हैं या उनके सन डॉटर, जो सन है, उनके जो लीनियर डिसेंडेंट है, उनका भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। देन स्पाउस में, जो आपके स्पाउस हैं, स्पाउस के भी आपके लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, फिर उनकी स्पाउस, फिर जो स्पाउस है उनके ब्रदर सिस्टर, फिर ब्रदर सिस्टर का भी स्पाउस, और उनके लीनियर असेंडेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो इन दिस केस, क्योंकि ये अभी आगे काफी जगह आएगा, तो मैंने इसको पहले ही जो एक्सप्रेशन थी रिलेटिव की, उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। तो रिमेंबर दिस वर्ड रिलेटिव, कौन कौन है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, जो आपकी इनएलिजिबिलिटी है इन केस ऑफ अदर देन कंपनीज। सो इन एनी अदर केस, वहां पे हमने क्लोज ए देखा था जो सेक्शन 141 में, जो कंपनीज एक्ट में इनएलिजिबिलिटी है। तो हम इन एनी अदर केसेस, तो इन दिस केस फर्स्ट असेसी हिमसेल्फ मींस मैं अपना खुद का ऑडिट नहीं कर सकता, टैक्स ऑडिट। और इन केस असेसी बीइंग ए फर्म, अगर फर्म है या एओपी है या एचयूएफ है, तो इन दिस केस कोई भी पार्टनर या मेंबर ऑफ एचयूएफ आर द एओपी, वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 288 सबसेक्शन 2। क्लियर? तो आप एसएससी हिमसेल्फ या पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म का, एओपी का कोई मेंबर है या एचयूएफ का कोई मेंबर है, आप एचयूएफ ऑडिट नहीं कर पाएंगे। And in case of the assessee being a trust or institution, any person referred to in clause A, B, C, CC of the subsection 3 of section 13. This is very important कि हम ट्रस्ट का ऑडिट कर देते हैं। तो ट्रस्ट के केस में कौन कौन डिफाइंड है जो ऑडिट नहीं कर सकते, टैक्स ऑडिटर नहीं कर सकते? तो दिस इज डिफाइंड इन क्लोज A, B, C, CC of subsection 3 of section 13. तो फर्स्ट इज ऑथर ऑफ द ट्रस्ट आर द फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि जो ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है उसका जो फाउंडर है वो उसका ऑडिट इनएलिजिबिलिटी में आ जाएगा। देन सेकंड इज ए पर्सन हु हैज मेड ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कि कोई उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है विच इज अप टू 50,000 रुपीज, अगर वो कंट्रीब्यूशन अप टू 50,000 रुपीज, and then where such author, founder or person is HUF, then member of their family, then any trustee of the trust or manager whatsoever name card। तो ये जो लोग हैं they are also ineligible, वो भी आपके ऑडिट नहीं कर पाएंगे। and then next is in case of any person other than person referred in clause subclause I and subclause 2I। तो इनके अलावा जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ट्रस्ट वाले केस में, इंस्टीट्यूशन या फिर आपके एओपी फर्म, एसएससी, प्रोप्राइटरशिप है एचयूएफ के केस में, उसके अलावा कोई और है, देन द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140। जो जो रिटर्न वेरीफाई करते हैं उसमें जो पर्संस हैं वो भी आपके इनएलिजिबल है टैक्स ऑडिट के लिए। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, any relative of any person referred to in clause 1, 2 and 3 means if you are the member of HUF, तो HUF के जितने भी मेंबर्स हैं HUF के, दे आर इनएलिजिबल। फिर उनके रिलेटिव, जो रिलेटिव पीछे हमने डिस्कस किया था, स्पाउस, फिर उनके स्पाउस के आपके लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, फिर उनके ब्रदर सिस्टर, फिर उनके ब्रदर सिस्टर के जो डिसेंडेंट है, लीनियर डिसेंडेंट्स हैं, वो सारे दे आर द इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में भी आपका कोई पार्टनर है, वो तो आपकी क्लोज आई में इनएलिजिबल है, बट सब क्लोज आई में, बट जो आपके उसके रिलेटिव भी हैं, जो रिलेटिव वहां पे पीछे हमने डिफाइन किया है, दे आर आल्सो, आप उनका भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन this one was when the next is an individual who are his relative or partner, means individual himself और उसका कोई relative है या उसका partner is holding any security or interest in the assessee, कि आप किसी assessee, अगर आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसकी आप कोई सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते या फिर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट
यहाँ पे प्रोवाइडेड दे सेट रिलेटिव अगर है दैट कैन होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अप टू 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो इनएलिजिबल है। अप टू 1 लाख रुपीज की वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं या फिर इंटरेस्ट हो सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द रिलेटिव, नोट बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हिज पार्टनर। दिस इज फॉर द रिलेटिव। और रिलेटिव क्या है? इंडिविजुअल। यहाँ पे पार्टनर का रिलेटिव नहीं है, इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव। देन सेकंड इज इन डेट टू द असेसी, कि आप इन डेट भी नहीं होने चाहिए। इन डेट मतलब आपने कोई लोन वगैरह भी नहीं होने चाहिए, बट यस फिर यहाँ पे प्रोवाइडेड रिलेटिव में बी इंडेटेड टू द assessee for an amount not exceeding 1 लाख रुपीज, 100,000 रुपीज। तो इस केस में भी रिलेटिव है। देन थर्ड केस में हैज गिवन ए गारंटी or provided any security in connection with indebtedness of any third person to the assessee, कि अगर आपने कोई गारंटी प्रोवाइड करे या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है वो भी आप नहीं कर सकते। बट यहाँ पे भी दे सेड यस रिलेटिव कैन डू टू द थर्ड पर्सन, बट दिस कैन बी अप टू 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज ज्यादा देन आल्सो इनएलिजिबल। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार हम चेक नहीं करते कि कहीं हमारा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है या कोई सिक्योरिटी तो होल्ड नहीं कर रही, कोई इंडेक्स तो नहीं है या फिर कोई गारंटी तो नहीं प्रोवाइड कर रखी, आइदर बाय आवरसेल्फ और थ्रू अवर रिलेटिव और थ्रू पार्टनर। और रिलेटिव के केस में अप टू 1 लाख रुपीज तीनों केसेस में। देन नेक्स्ट एंड ऑफिसर, वो इसको ऊपर नीचे हो गए। एंड ऑफिसर आर एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी, वो भी इनएलिजिबल है। देन एन इंडिविजुअल हु इज ए पार्टनर or who is in employment of an officer or employee of the SSC. This is also very very important. ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी, कि कोई अगर आपका एसएससी है तो उसका कोई एम्प्लॉय है या उसका कोई ऑफिसर है वो भी इनएलिजिबल है। या फिर इंडिविजुअल जिसका पार्टनर या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट है विद द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी। देन इन नेक्स्ट केस ए पर्सन whether directly or indirectly has business relationship with the assessee of such nature as may be prescribed. So business relationship भी prescribe करा हुआ है कि अगर आपका directly या indirectly business relationship है, it's defined in the company's audit and auditor rules के अंदर ये business relationship भी define किया है। अगर आपका business relationship भी है तो भी आप ineligible हो। And then in next case, a person who has been convicted by a court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction, उन उस केस में भी आप टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो दिस इज रिगार्डिंग द इनएलिजिबिलिटी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा भी कुछ एज पर आईसीआई कोड ऑफ कंडक्ट में भी डिफाइंड है प्रोफेशनल एथिक्स में कि अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या कुछ और केसेस में भी दे हैव प्रिस्क्राइब्ड कि आप कब कब ऑडिट नहीं कर सकते। बट इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड है कई बार वो स्किप्ड है। वो जो सेक्शन 288 में प्रिस्क्राइब्ड है कि यू आर इनएलिजिबल, तो रिमेंबर दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिलेटिव की डेफिनेशन तो जरूर चेक करना। कई बार हम लोग ऑडिट कर देते हैं टैक्स ऑडिट। आई नो मैनी पीपल जो इन लॉज में ब्रदर इन लॉ का या ब्रदर इन लॉ वाइफ का ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिटर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड, कि ऐसा रिलेटिव की डिफाइंड नहीं है, बट यस इट्स डिफाइंड। So again and again I am saying, before doing या before accepting the tax audit, please go through the clause 288. So thank you very much. In case if you have any query, in any doubt, you can message me or you can call me, but only again my request to all of you, please एक तो query पूरी explain से पूरी डिटेल में भेजो, and also प्लीज डिस्क्राइब योर नेम एंड प्लेस। आप इतना तो बता दो, कभी नहीं बताते लोग, बस क्वेरीज के लिए बस भेज देते हैं। एटलीस्ट मेंशन योर नेम। क्यों इतना शर्माते हो अपना नाम लिखने में? मैं भी आप जब वीडियो बनाता हूँ तो लिखता हूँ माई सेल्फ इज ये विवेक खुराना। तो जब व्हेन यू आर सेंडिंग क्वेरी और व्हेन यू आर सेंडिंग मैसेज टू समवन, गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।